آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو نا پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کر لیں، ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری پہلے، مجھے یہ میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا۔ اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نا دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں، میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا، آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتہ نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتہ نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں، فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا، میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا، ایک پورے طاقتور عمل ہے، سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلک اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلک اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔ میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، بندش لگانے والوں پہ
या कहर, जब उन पे बंदिश लगती है उनकी बंदिश टूट जाती है, आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए, खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं, जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पाँव गीला रहे और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी, जहनी, आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पाँव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग, वॉकिंग, पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं, कहते जी शुगर वालों के लिए, फलां बीमारी वालों के लिए। इसलिए मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने अपनी जिंदगी में कभी कभी पैदल चलना भी सिखाया कि आप पैदल भी चले, यानी बगैर जूतों की भी चले, नंगे पांव भी चले। पैदल तो सारी उम्र चले, नंगे पांव भी चले। कहने लगे ऐसे जूते आ गए हैं, ऐसे जूते जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और हल्का हल्का उसमें से मसाम होते हैं, जैसे हमारा पसीना नहीं निकलता हमारी जिल्द में से, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंसान का पांव का वजन पड़ता है, वो छोटे छोटे सुराख, और फिर एक रास्ता होता है, उसमें से पानी निकलता जाता है कि अंदर कीचड़ ना हो, उसमें से बाहर निकलता जाता है, पानी भर दिया जाता है जूतों में। रूह की दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की एक कायनात है, एक निजाम है पूरा, जो बड़े बड़े वलियों पे, गौसों पे खुला, कलंदरों नकीबों पे खुला, नजीबों अबरारों पे खुला, मुहद्दिसीन फुक़हा पे खुला। इमाम गजाली की किताब उठा के देखें, बहुत कायनात खोली। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कायनात खोली। शहनशाह विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रहमुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उन पे निजाम खुला, उन पे उलूम खुले जो हमारी अकल, शऊर, एहसास से हम सोच नहीं सकते। कितनी, जब से मुझे साल हो गए हैं, मैं या कहारों को बता रहा हूं कि पानी में पांव डाल के इसकी 11 तस्बीहां पढ़ें, अवल आखिर 11 दफा दरूद शरीफ, या 8 तस्बीहां पढ़ें, अवल आखिर 8 दफा दरूद शरीफ। कितनी दुनिया ने इससे फैज पाया, कितनी दुनिया ने इससे खैर पाई, कितनी दुनिया ने अपने गम, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल टलवाए। कितनी दुनिया ने, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में अल्लाह ने ये निजाम चला दिया, फैला दिया। किसी दुनिया ने इसमें खैर पाई। डॉक्टर की दवा, डॉक्टर का फार्मूला, उसकी थ्योरी, उसका निजाम अपनी मर्जी से नहीं। अंग्रेज का फार्मूला है कि कोई भी अगर नंबर मिलाना है तो उसमें 0 पहले आएगा, मुल्क का मिलाना है तो उसका कोड पहले आएगा। वो तो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। रूहानियत का निजाम हम जिस तरह चाहें चलाएं, लिख ले नहीं चलेगा। इसके लिए अपने आप को किसी फकीर के सामने तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, और तालिब इल्म बन के बैठना पड़ेगा, तालिब इल्म बन के बैठना। मुझे एक और वाकया याद आया। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम मसऊद था, और मावरा नहर, ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये ईरान तक एक खुरासान एक पट्टी है, अब कई मुल्कों में चली गई है। खुरासान एक पूरी पट्टी है जो कई मुल्कों में तकसीम हो गई है। तो ये असल वहां के थे। जब जादूगर आए आपके मुकाबले में, हर किस्म की ज्यादतियां की आपके साथ, बहुत ज्यादा जालिम है, लड़ने वाले, तलवारों पे हमला करने वाले, कातलाना हमला करने वाले, जहर देने वाले, आपके खिलाफ उस दौर का मीडिया इस्तेमाल करने वाले, आपके खिलाफ जबान दराजी करने वाले, फिर जादूगर भी लाए। तो आपको आपके खादिम ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत जादूगर हैं और मैं कोई परेशानी नहीं, मैंने इन सब के इल्म, इन सब के विर्द, इन सब की चीजें सल्ब कर ली, बस खत्म कर ली, हर चीज इनकी मैंने खत्म कर दी। इनकी जितनी भी चीजें हैं, ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये होगा, ये सब खत्म, हमने सल्ब कर ली। मेरी एक दरखास्त है आपसे, अपनी जिंदगी में या कहारों को शामिल कर। और मैंने इसी हफ्ते वाले दिन मैंने एक लंबा सफर किया। इसी हफ्ते वाले दिन मैं यहां से उकाड़ा गया, उकाड़ा से फिर मैं मामू कांजन गया, मामू कांजन से गोजरा गया, गोजरा से गुजरावाला आया, गुजरावाला के गांव में गया, किला मियां से लंबा सफर किया। रात के 1:45 बजे घर पहुंचा। एक दुर्वेश के यहाँ गया, गोजरा में एक मोहब्बत करने वाले थे मुझसे, वहां खड़े होते जो मैं रोया, इतना रोया आप सोच नहीं सकते। उनकी कब्र पे खड़ा होकर, भाई की कब्र साथ थी जिनका वाकया मैंने आपको सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। लिखा हुआ था डॉक्टर बरकत अली कब्र पे, उनकी कब्र पे नहीं लिखा हुआ था। गोजरा के मुखलिसीन मुझे उन्होंने सड़क से लिया, हम सीरा कब्रिस्तान गए, फिर उनके घर जाके गोजरा में मैंने खाना खाया। कहने लगे मैं बीमार हो गया। तो दुर्वेश जिनकी कब्र पे मैं गया,
बीमार हो गया तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआलजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना। वो अमल जो मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अमल 4 रकात नमाज पढ़ें, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासर 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साथ। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उससे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएंगे। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक। कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़, मेरे भाई ने बताया। कह रहा भाई तो फौत हो गया। कह रहा ख्वाब में बताया। भाई तो फौत हो गया। कहने लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से इनको हाजी साहब की मोहब्बतें याद दिला रहा था और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था, हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर। वादा किया। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब चंद साल पहले फौत हुए। खड़ा, मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए। बहुत रोया, वहां हिचकियां ले के रोया। उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने तो फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तुरबत पे गया। या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीबो, एक तस्बीह हर नमाज के बाद या हसीबो। अपनी नस्लों को समझाएं वो पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं वो पढ़ें, और इम्तहानात से पहले और इम्तहानात के बाद 3300 दफा या हफीजो या हसीबो पढ़ लें। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ 3300 दफा या हसीबो पढ़ लें इम्तहानात से पहले और इम्तहानात के बाद। 3300 बार या हसीबो पढ़ लें इम्तहानात से पहले और बाद, और इम्तहानात के दौरान और बाकी अय्याम में एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़े। वरना एक और शक्ल भी है कि सारा दिन खुला बहुत ज्यादा पढ़ते रहे या हसीबो, बहुत नंबर मिलते हैं। मेहनत भी करे और साथ दुआ भी करे, 2 चीजें हैं। मैंने ना एक बच्चे को दुआ दी, उसने कहा इम्तहान है, मैंने दुआ दी, उसने कहा जी पहला मेरा पर्चा जो है वो मैथ का है, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने दुआ दी, मैंने कहा तू कामयाब है, उनको कामयाब है। आज ही दुआ दी, मैंने कहा इंशाअल्लाह तो कामयाब हो जाएगा, बस मेहनत कर। कहा तो आपने दुआ दी थी तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज मुझे और मोहम्मद कहने लगा आपने अगर दुआ दी तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस मैं कामयाब हो गया और एकदम ऐसी शान और शौकत में खुश हो गया। मैं कहने का इंशाअल्लाह तो कामयाब है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है। बहुत जबरदस्त लफ्ज़ है कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। एक अपना तजर्बा तो मैंने आपको 1-2 दफा बताया। एक दुआ है मेरे पास जो मैंने तो वो रात सारे फाश कर दिए हैं, लोगों में आम कर दिए हैं। या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरह। अच्छा अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक मदीने के सादात में बकी के सामने खड़े होकर कहने लगे आपने एक दुआ कही है, नाराज ना हो तो एक बात कहूं। मैं जी जी बिल्कुल। कहने आपने कहा था मैंने इसरार दुनिया, ये तो असरार है। ओह, मैं कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, शुक्रिया आपने मेरी इस्लाह कर दी। अब वो उस दिन से मैं अपनी इस्लाह को फिर बयान कर रहा हूं कि मैंने लफ्ज इसरार दुनिया कहा था, मैंने इसरार दुनिया वल आखिरह, जबकि लफ्ज है मिन असरार दुनिया। मैंने जेर पढ़ी थी, लफ्ज है जबर पढ़ी थी। एक आले रसूल ने मुझे मदीना मुनव्वरा में मेरी इस्लाह की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हर पल इस्लाह का मोहताज हूं। ये मैं पढ़ता था, मेरा मामूल था, पढ़ता था। मेरे साथ तो बाज़ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि मैंने पर्चा आंखों से देख लिया, जो कल आना है और हल करना है। रात को मैं जल्दी सो जाता था। वो मेरे साथ मेरा एक था, एक क्लास मुझसे सीनियर था, वो सारी रात बेचारा पढ़ता, फिर आंखों पे छींटे मारता। जवानी या नींद तो आती है, मुझे आके उठा कर तू क्यों सोया हुआ है? मैं मुझे सोने में तेरा क्या ताल्लुक? तू सोता है तो मुझे नींद आती है, तू भी उठ के बैठ। मैं तू अपना काम कर। मैं सुबह उठूंगा, किताब को दोहराऊंगा और किताब को दोहरा के महज उसकी शान करीमी है, हर साल पोजीशन लेता था, बड़ी अच्छी पोजीशन लेता था और उसकी मुझे स्कॉलरशिप पैसे मिलते थे, और जो मैंने कभी अपनी जात पे खर्च नहीं किए और खैर के काम में खर्च किए। ये दुआ बड़ी ताकतवर है। या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरह। बहुत जबरदस्त दुआ है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए नहीं, जिंदगी के बड़े अनोखे निजाम के लिए जो मौलिज है वो ये चाहता है कि मेरी नब्ज और मेरी तशखीस और मेरा परख ठीक हो,
जो किसी इन्वेस्टिगेशन, तहकीक की दुनिया, तफ्शीश की दुनिया का शोबा है, कोई भी जिंदगी का शोबा हो, ये दुआ जिंदगी के शोबों में बड़े काम आती है। और इस दुआ के सामने से बड़े राज, उकदे, पर्दे हटते हैं और बहुत सी आंखों के सामने से चीजें आ जाती हैं, बहुत सी चीजें आंखों के सामने आ जाती हैं, पर्दे हट जाते हैं। और एक चीज है कि इस दुआ की ताकत जिस पे खुल जाए, ये दुआ की तासीर जिस पे खुल जाए, बर्तन बड़ा रखे, ये बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं आंखों के सामने, फिर देखेगा और पी जाएगा। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कि कौन दिला दिया जाएगा, पी जाएगा। समंदर बड़ा गहरा, बड़ा वसी होता है, बड़ा खामोश होता है, और चश्मों का पानी थोड़ा सा होता है, बड़ा शोर बहुत होता है। समंदर बन जाना, पी जाना, कोई तुझे समझे ही ना, कौन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया तुझे पहचान ही ना पाए। कोई एक नंबर कहे, कोई दो नंबर कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई दुकानदार कहे, और इसी कशमकश में कफन पहन के चला जा, कोई तुझे पहचान ही ना सके। कोई तुझे, ये हजरत राबिया बसरिया के अल्फाज मैंने कहे हैं, कौन फिर दुनिया गरीब। हजरत राबिया बसरिया फरमाती थी, कौन फिर दुनिया गरीब। गरीब कहते हैं असल में परदेशी और मुसाफिर को। लैसल गरीब व गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब व गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीब वजादी लै युबलगनी, कुव्वती ज़ौफ़त वल मौत यतलबनी। तो गरीब कहते हैं असल में परदेशी को। परदेशी के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मालदार है, गरीब है, दौलतमंद है, नेक है, कैसे है। हमें इसी तरह परदेशी की तरह जिंदगी गुजार, और लोग अंदाजे लगाते रहे, कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई वली कहे, कोई शैतान कहे, कोई क्या कहे। या हसीबो, जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को। और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं।
मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुद भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज